Okay, cool. Yeah, in this video, I'm going to tell you that I am preparing for an exam called Cellular and Mobile Communications. Let's dig it out and read what are the important topics and important that we can cover for this cellular and mobile communications. Explain about foliage loss. Foliage loss is a very complicated topic that has many parameters and variations. The size of leaves, branches, and trunks, the density and distribution of leaves, branches, and trunks, and height of trees related to antenna heights will also be considered. माने ये फॉलेज लॉस क्या है? ये फॉलेज लॉस पेड़ों के द्वारा और बिल्डिंग के द्वारा, उनके लीव्स के द्वारा, उनके ब्रांचेस के द्वारा हमें बता रहे हैं. ये फॉलेज लॉस एक बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका कई पैरामीटर्स एंड वेरिएशंस होता है. ऑन एक्सप्लेन अबाउट ग्राउंड इंस्टेंट एंगल एंड ग्राउंड एलिवेशन एंगल. ग्राउंड इंस्टेंट एंगल एंड ग्राउंड एलिवेशन एंगल क्या होता है? ग्राउंड इंस्टेंट एंगल माने is the angle of wave arrive identically pointing to the ground. It is the angle of wave arrival identically pointing to the ground. The ground elevation angle is the angle of wave arrival at the mobile unit. Is the angle of wave arrival at the mobile unit. Indicate antenna pattern in broadband umbrella pattern antenna. Antenna pattern in broadband umbrella pattern antenna. Okay. वो क्या होता है? ब्रॉडबैंड अम्ब्रेला माने एक 180 डिग्रीज वाला होता है. 180 डिग्रीज वाला एक डिस्को होता है. द पैरामीटर्स ऑफ डिस्कोन एंटीना इन विच वन ऑफ द कोन्स, द पैरामीटर ऑफ द डिस्कोन एंटीना इन विच वन ऑफ द कोन्स is 180 degrees to form a disc. The pyramid of discoid antenna in which one of the cones is extended to 180 degrees to form a disc. Infer about TDMA, time division multiple axis. Time division multiple axis. Possible to allocate different number of time slots. Time division multiple axis is possible to allocate different number of time slots per frame to different users. Infer about OFDMA, orthogonal frequency division multiple axis. Orthogonal frequency division multiple axis, where the spread spectrum techniques technique spreads the data over a number of carriers that are spaced apart at precise frequencies. ये क्या कह रहा है? OFDMA, orthogonal frequency division multiple axis. Where the spread spectrum technique spreads the data over a number of carriers that are spaced apart at precise frequencies. ये कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम होते हैं ना, वो स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो रहे हैं दूसरे दौरान पे कैरियर के. वो ये स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो रहे हैं कैरियर में. वो कैरियर वो भी स्पेस्ड अपार्ट एट प्रिसाइज फ्रीक्वेंसीज. वो कैरियर भी एक प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पे वो भी सेपरेट हो रहे हैं. ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी मल्टीपल एक्सेस where the spectrum technique spreads the data over a number of carriers. Spectrum is spread over a number of carriers. Spectrum एक बहुत सारे कैरियर के दौरान पे शामिल होते हैं और वो कैरियर्स भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी एट प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी में भी वो चले रहे हैं. फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ अंडर कंसिडरेशन ऑफ लैंड टू मोबाइल ट्रांसमिशन ओवर वाटर और फ्लैट ओपन एरिया. Find the field strength under the consideration of land to mobile transmission over water or flat open area. Land to mobile transmission over water. Land to mobile transmission over water. There are always two equal strengths reflected waves, one from water and one from proximity of mobile unit, in addition to direct wave. Direct wave, okay. ये क्या कह रहे हैं कि हमें दो इक्वल स्ट्रेंथ रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं. कभी भी दो इक्वल रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं. एक रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं फ्रॉम वाटर के दौरान पे और दूसरा होता है फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोबाइल यूनिट के. एक होता है वाटर के और दूसरा होता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोबाइल यूनिट के दौरान पे. इन एडिशन टू डायरेक्ट वेव के बावजूद ये दोनों ही रहते हैं. देयर आर ऑलवेज टू इक्वल स्ट्रेंथ
reflected waves, one from water and one from proximity of the mobile unit in addition to direct wave. ये यही कर रहे हैं, एक वाटर के साथ होते हैं टू इक्वल स्ट्रेंथ रिफ्लेक्टेड वेव्स, एक वाटर के साथ होते हैं और एक फ्रॉम द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मोबाइल यूनिट पर होता है इन एडिशन टू डायरेक्ट वेव्स से जुड़ के ये दोनों होते हैं, फ्रॉम वाटर के होते हैं और फ्रॉम द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोबाइल यूनिट के दौरान पे होता है. और इसका डायग्राम ऐसे दिखते हैं इसका डायग्राम. फर्स्ट इज फ्रॉम वाटर एंड सेकंड इज फ्रॉम द मोबाइल यूनिट एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट वेव. या कूल. Therefore, the reflected power of two reflected waves can reach the mobile unit without noticeable attenuation. एटेन्यूएशन के दौरान पे ये दोनों होते हैं ना, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव और सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव, ये मोबाइल यूनिट को पहुंचते हैं विदाउट एटेन्यूएशन. सिग्नल लॉस होने के बावजूद भी ये दोनों वो अचीव करते हैं. द टोटल रिसीव्ड पावर एट द मोबाइल यूनिट could be obtained by summing three components. The total received power at a mobile unit could be summarizing three components. या होते हैं ना, डायरेक्ट वेव, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव, सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव. ओके, ठीक है. वो तीनों के समराइज होने के बावजूद हमें वो मिलता है. PR is equal to PT by 4 pi d by lambda whole square into mod of 1 minus e to the power of j delta phi 1 minus e to the power of j delta phi 2. ये होते हैं, ये फॉर्मूला होते हैं ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए. PR रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड पॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड पॉइंट बाय 4 pi d by lambda whole square, 4 pi d by lambda whole square into 1 minus e to the power of j delta phi 1 minus e to the power of j pi delta 2 whole square. एक बार इस फॉर्मूला को देखिए, आप समझ जाएंगे, वेयर डेल्टा थीटा 1 एंड डेल्टा थीटा 2 आर द पाथ लेंथ डिफरेंस. ये है ना, ये होता है पाथ लेंथ डिफरेंस होते हैं बिटवीन द डायरेक्ट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव रेस्पेक्टिवली. path length difference between the direct wave and reflected wave respectively, because delta theta 1 and delta theta 2 are very small usually for the land to mobile path. वो बहुत स्मॉल होते हैं लैंड के मोबाइल पाथ में, ये बहुत स्मॉल होते हैं ना. हमें पता है कि e to the power of थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस जे sin थीटा. उसको यूज़ करके cos थीटा माइनस जे sin थीटा उसको यूज़ करके हम उसको यूज़ करके हम इसे बनाए हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस फाइव थीटा माइनस जे ऑफ साइन फाइव, इसको यूज़ किया. और हमें पता है कि कॉस और ये दोनों 1 के बावजूद इक्वल होते हैं और ये इसके बावजूद इक्वल होते हैं ना. उसको दिमाग के रख के हम ये दोनों इक्वेट कर लिया है. उसको इक्वेट करने के बाद ये मॉड सिंबल होते हैं ना, ये मॉड सिंबल या हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि माइनस सिंबल को पॉजिटिव में बनाने के लिए, नेगेटिव सिंबल को पॉजिटिव में बनाने के लिए ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है. इन दी मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस डेल्टा फाइव 1 एंड डेल्टा फाइव 2 और लेस दैन 1 होते हैं ना, उसके बावजूद पे हमें रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड बाई 4 pi d by lambda होल स्क्वेयर, रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड बाई 4 pi d by lambda होल स्क्वेयर. मैं एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ. यदि ये क्वेश्चन आए हैं, फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ अंडर कंसिडरेशन ऑफ लैंड टू मोबाइल ट्रांसमिशन ओवर वाटर और फ्लैट ओपन एरिया. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, आप उसे क्या सवाल देंगे? हमें there are two equal strength reflected waves. There are two equal strength reflected waves, one from water and one from the proximity of the mobile unit होता है. डायरेक्ट वेव से जुड़ के ये दोनों होते हैं, वन फ्रॉम वाटर से होते हैं, वन फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोबाइल यूनिट के दौरान पे होते हैं, और तीसरा डायरेक्ट वेव होते हैं. इस डायग्राम से आपको पता चलेगा डायरेक्ट वेव, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव, सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव वाटर से आ रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोबाइल यूनिट के दौरान पे आ रहा है. Therefore, the reflected power of two reflected waves
कैन रीच द मोबाइल यूनिट विदाउट अननोटिसेबल एटेन्यूएशन। सिग्नल लॉस्ट होने के बावजूद ये तीनों मोबाइल यूनिट को पहुंचते हैं। द टोटल रिसीव्ड पावर एट द मोबाइल यूनिट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय समिंग 3 कंपोनेंट्स। वो टोटल पावर होते हैं ना, इस को पहुंचने में टोटल पावर होते हैं ना, उसको इस 3 वेव को कंबाइन करके वो पहुंचता है। पी आर इज इक्वल टू, हमें ये जूम करते हैं, पी आर इज इक्वल टू पी टी रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड बाई 4πd बाई लैम्डा होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e to the power of j डेल्टा phi 1 माइनस e to the power of j लैम्डा थीटा phi 2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत आसान है, आप एक बार देखें आपको समझ जाएगा। ये थीटा 1 होते हैं ना, थीटा 1 थीटा 2 पाथ लाइन डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स रेस्पेक्टिवली, पाथ लाइन डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव रेस्पेक्टिवली, बिकॉज theta phi 1 and theta phi 2 are very small usually for the land to mobile path. Then reflected is equal to transmitted by 4πd by lambda whole square. ये होते हैं ना e to the power of theta, e to the power of theta को हम cos theta plus I sin theta कर सकते हैं, cos theta plus I sin theta कर सकते हैं। उसके बावजूद इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी के दौरान पे हमें पता है कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये दोनों एक के बावजूद में इक्वल होते हैं, इक्वल कर सकते हैं, हम इक्वल कर सकते हैं। मगर sin थीटा 1 होते हैं ना, sin थीटा 1 को हम थीटा phi 1 बोलते हैं और sin थीटा 2 को हम थीटा phi 2 बोलते हैं। इसी के दौरान पे हमें यह इक्वेशन, इतना बड़ा सा इक्वेशन इतना छोटा हो जाता है और फाइनली हम जब मॉडुलस को निकाल लेते हैं तो उस मॉडुलस माइनस को प्लस में बदल लेता है। फाइनली हमें पी आर इज इक्वल टू पी टी बाई 4πd बाई लैम्डा स्क्वायर फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ओके ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया। हमें ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, डेमोन्स्ट्रेट अबाउट अम्ब्रेला पैटर्न एंटेनास एट सेल साइट्स। डेमोन्स्ट्रेट अबाउट अम्ब्रेला पैटर्न एंटेनास एट सेल साइट्स। अम्ब्रेला पैटर्न एंटेना, the pattern of disc cone antenna in which one of the cones is extended to 180 degrees to form a disc. The parameter of disc cone antenna in which one of the cones is extended to 180 degrees to form a disc. वन ऑफ द कोन एक होल होता है ना, उसको हम 180 डिग्रीज करके उस चीज़ में हमें शामिल होते हैं। यही है अम्ब्रेला पैटर्न एंटेनास। क्या होते हैं अम्ब्रेला पैटर्न एंटेनास? ये होते हैं कि एक को हम 180 डिग्रीज करके कर सकते हैं। एसेस अबाउट मोबाइल एंटेनास इन सेलुलर कम्युनिकेशंस। मोबाइल एंटेनास, द रिक्वायरमेंट ऑफ ए मोबाइल एंटेना इज एन omnidirectional antenna which can be located as high as possible from the point of reception. However, the physical limitation of antenna height on the vehicle restricts the requirement. Mobile antennas. Assess about mobile antennas in cellular communications. Mobile antennas क्या होते हैं cellular communication में? Mobile antennas क्या होता है? Mobile antennas, the requirement of a mobile antenna is a omnidirectional antenna which can be located as high as possible from the point of reception. However, the physical limitation of antenna height on the vehicle restricts this requirement. Generally, the antenna should at least clear the top of vehicle. ये एंटेना होते हैं ना, एटलीस्ट टॉप ऑफ द व्हीकल को क्लियर करना है। मोबाइल एंटेना, रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल एंटेना इज एन omni directional antenna which can be located as high as possible from the point of reception. पॉइंट ऑफ रिसेप्शन से ज़्यादा होना चाहिए, इसका हाइट पॉइंट ऑफ रिसेप्शन से ज़्यादा होना चाहिए। However, the physical limitation of antenna height on the vehicle restricts this requirement. यह रिक्वायरमेंट को, फिजिकल लिमिटेशन को एंटेना हाइट रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जनरली द एंटेना शुड एटलीस्ट क्लियर द टॉप ऑफ व्हीकल। एक व्हीकल होते हैं ना, जरे गाड़ी को लेके, एक गाड़ी को लिया, हम उस गाड़ी के आगे हाइट होना चाहिए। इस एंटेना का हाइट हमारे गाड़ी होते हैं ना, उस गाड़ी से ज़्यादा होने चाहिए बस।
Roof mounted antennas. The pattern of a roof mounted antennas is more or less uniformly distributed around the mobile. The pattern of roof mounted antenna is more or less uniformly distributed around the mobile unit when measured at a range in free space as shown in figure. ये होते हैं रूफ माउंटेड एंटीना, ये होते हैं गाड़ी से ज़्यादा होना चाहिए. The 3 dB antenna shows 3 dB gain over the quarter wave antenna. However, the gain of antenna used at the mobile unit must be limited to 3 dB because the cell side antenna is rarely as high as the broadcasting antenna and out of sight conditions often prevail. ये क्या है, ये क्या हो सकते हैं, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो. Roof mounted antenna. The pattern of roof mounted antenna is more or less uniformly distributed around the mobile unit. ये गाड़ी होते हैं ना, हमारे गाड़ी होते हैं ना, उस गाड़ी के दौरान पे एंटीना इज मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं व्हेन मेजर्ड एट द एंटीना रेंज इन द फ्री स्पेस एज शोन इन द फिगर. ये होते हैं ना हमारे एंटीना, वो एंटीना यूनिफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. द 3 dB एंटीना शोज 3 dB गेन over the quarter wave antenna. The 3 dB एंटीना, ये 3 dB एंटीना होते हैं ना, ये 3 dB एंटीना 3 dB गेन शो करते हैं हमें क्वार्टर वेव एंटीना के दौरान पे, ये हमें 3 dB गेन शो करते हैं. However, the gain of the antenna used at the mobile unit must be limited to 3 dB. ये गेन होते हैं ना, रिसीविंग या सेंडिंग होते हैं ना, ये गेन होते हैं ना, ये 3 dB होनी चाहिए, 3 decibels होनी चाहिए, because the cell site antenna is rarely as high as broadcasting antenna. क्योंकि ये सेल साइट एंटीना होते हैं ना, वो गाड़ी में रुकने वाले होते हैं ना, वो सेल साइट एंटीना वो इज एज हाई एज ब्रॉडकास्टिंग एंटीना. वो बहुत रेयरली ब्रॉडकास्टिंग एंटीना से ज़्यादा होते हैं. एंड आउट ऑफ साइट कंडीशन ऑफन प्रिवेल. रूफ माउंटेड एंटीना. गणेश आपको रूफ माउंटेड एंटीना दिया है, रूफ माउंटेड एंटीना के बारे में बता दीजिए. रूफ माउंटेड एंटीना ये होते हैं जिसका पैटर्न मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मोबाइल यूनिट. It is distributed more or less around the mobile unit when measured at an antenna range in free space as shown in the figure. Okay, the 3 dB antenna shows 3 dB gain over the quarter wave antenna. The 3 dB antenna shows 3 dB gain over the quarter wave antenna. However, the gain of the antenna used at the mobile unit must be limited to 3 dB. However, the gain of the antenna must be at the of the antenna used at the mobile unit के पास यूज़ किया था ना, उसका गेन 3 dB होना चाहिए, क्योंकि ये एंटेना जो होते हैं ना, ये रेयरली ब्रॉडकास्टिंग एंटेना से हायर होते हैं, इसीलिए हमें 3 dB गेन यूज़ करनी चाहिए. इस एंटेना में 3 dB गेन हमें यूज़ करनी चाहिए. ये होते हैं ना 3 dB कोलिनर रूफ माउंटेड एंटीना, रूफ माउंटेड क्वार्टर वेव. इसे हम क्वार्टर वेव करते हैं, इसे हम रूफ माउंटेड 3 dB कोलिनर कहते हैं. ये क्वार्टर वेव है, ये रूफ माउंटेड कोलिनर है. विंडो माउंटेड ऑन ग्लास कोलिनर एंड रूफ माउंटेड क्वार्टर वेव. ओके, हमें 0, 10, 20, 30, 26, 25 होते हैं ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये होते हैं ना. हमें 10 तक हमें क्वार्टर वेव होते हैं. उससे ज़्यादा 0 माने 0 और 0 से ज़्यादा ये होते हैं, उसे हम 3 dB होते हैं. हमें 3 dB क्यों यूज़ करते हैं? 3 dB हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि इसके एंटीना होते हैं ना, हमें पढ़ा था ना, gain of the antenna used at the mobile must be limited to 3 dB because the cell side antenna is rarely as high as broadcasting antenna. सेल साइड एंटीना होते हैं ना, वो
रेयरली एज हाई एज ब्रॉडकास्टिंग एंटेना होते हैं, इसीलिए हम वो यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंटेना यूज़ करते हैं। ग्लास माउंटेड एंटेना, ग्लास माउंटेड एंटेना क्या होते हैं? इसका कोई पिक्चर दिया नहीं दिया, इसका कोई पिक्चर भी नहीं दिया। ओके कूल। ये होता है इन दिस टाइप ऑफ एंटेना एनर्जी इज कपल्ड थ्रू द ग्लास, हेंस ड्रिलिंग ए होल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये होते हैं ना ग्लास वाले होते हैं, ये एंटेना होते हैं ना, वो एंटेना ग्लास के दौरान पे बनाए जाते हैं। हाउएवर सम एनर्जी, इसीलिए हमें होल्स नहीं ड्रिल करने चाहिए। बड़े बड़े से स्टील वाले होते हैं ना, वो नहीं है ये एक ग्लास माउंटेड एंटीना है। इसे हमें इनमें हम ग्लास यूज़ करते हैं ना, उसके दौरान पे हमें कोई अदर होल्स ड्रिल करने की इजाज़त नहीं है। हाउएवर सम एनर्जी इज डिसिपेटेड ऑन पासेज थ्रू द ग्लास, कुछ एनर्जी होते हैं ना, वो एनर्जी डिसिपेटेड ऑन द पासेज थ्रू द ग्लास इन द गेन रेंज इज, ये कहते हैं कि ये गेन रेंज 1 to 3 dB होते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, इट्स पोजीशन इज लोअर देन रूफ माउंटेड एंटेना, ये पोजीशन रूफ माउंटेड एंटेना से भी जो थोड़ा होता है। ऑल्सो इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन शेडेड ग्लास फाउंडेड इन मोटर व्हीकल्स, कैनॉट बी इंस्टॉल्ड। शेडेड ग्लास होते हैं ना हमारे मोटर गाड़ी पे, उस शेडेड ग्लास में हम ये एंटीना यूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्लास माउंटेड एंटीना क्या है? इसको दिया है आपको क्वेश्चन, आपको जवाब लिखने हैं। आप क्या लिखेंगे? ये एंटीना एनर्जी कपलिंग ग्लास के दौरान पे करते हैं, ये एंटीना एनर्जी कपलिंग ग्लास के दौरान से करते हैं, इसीलिए हमें कोई होल ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर सम एनर्जी, एक एनर्जी होते हैं ना, वो डिसिपेटेड ऑन पासेज थ्रू द ग्लास, ग्लास से के दौरान पे वो एनर्जी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके इट इज़ रेंज टू 1 to 3 dB, इसका रेंज 1 to 3 dB का होता है, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के दौरान पे ये 1 to 3 dB हो सकता है। इट्स पोजीशन इज़ लोअर देन रूफ माउंटेड एंटेना, इसका पोजीशन तो रूफ माउंटेड एंटेना से भी लो होते हैं। ऑल्सो इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन शेडेड ग्लास फाउंडेड इन मोटर व्हीकल्स, इट कैन बी, ये शेडेड ग्लास होते हैं ना मोटर व्हीकल्स में, उस ग्लास में हम ग्लास माउंटेड एंटेना नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट, इसे होल्स नहीं कर सकते क्योंकि कपलिंग ऑफ एनर्जी थ्रू द ग्लास हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सम एनर्जी इज डिसिपेटेड ऑन द पासेज थ्रू द ग्लास, सम एनर्जी होते हैं ना, वो एनर्जी ग्लास के दौरान पे जाने का होता है, रेंज होते हैं ना, इट्स रेंज इज 1 to 3 dB, 1 to 3 dB का इस रेंज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी इट्स पोजीशन इज लोअर देन रूफ माउंटेड, डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी इट्स पोजीशन इज लोअर देन रूफ माउंटेड एंटीना। ऑल्सो इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन शेडेड ग्लास फाउंडेड इन मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स में फाउंड होने के शेडेड ग्लास में इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। यही है ग्लास माउंटेड एंटीना। अगर आया एग्ज़ाम में, मैं लिख सकता हूँ ग्लास माउंटेड एंटीना के बारे में। मोबाइल हाइकेन एंटीना, ए हाइकेन एंटीना यूज्ड ऑन ए मोबाइल यूनिट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए डायरेक्शनल एंटीना, ए हाइकेन एंटीना यूज्ड ऑन ए मोबाइल यूनिट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए डायरेक्शनल एंटीना। Directional antenna, in directional antenna the pattern is suppressed horizontally, पैटर्न हॉरिजॉन्टली सप्रेस हो सकते हैं, एंड इन हाइगेन एंटीना द पैटर्न इज सप्रेस्ड वर्टिकली। In a mobile radio environment, the scattering signals arrive at the mobile unit from very direction with every probability. ये हाइगेन एंटीना होते हैं ना, इसको हम यूज ऑन द मोबाइल यूनिट, अपने गाड़ी के रूफ में हमें इस हाइगेन एंटीना को यूज़ करते हैं। शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए डायरेक्शनल एंटीना, ये डायरेक्शनल एंटीना से बिल्कुल अलग वाले चीज़ है। ये हाइगेन एंटीना डायरेक्शनल एंटीना से अलग है। इन डायरेक्शनल एंटीना द पैटर्न इज सप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली, डायरेक्शनल एंटीना हॉरिजॉन्टली उस पैटर्न को सप्रेस करते हैं। इन हाइगेन एंटीना द पैटर्न इज सप्रेस्ड वर्टिकली,
हाइगन एंटीना में पैटर्न को वर्टिकली डिवाइड किया जाता है, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल एंटीना में वो हॉरिजॉन्टली किया जा सकता है. In a mobile radio environment, the scattering signals arrive at the mobile unit from every direction with every probability. In a mobile radio environment, the scattered signals arrive at the mobile unit. The scattered signals arrive at the mobile unit. मोबाइल यूनिट के पास जो सिग्नल्स होते हैं ना, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन विथ एवरी प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन विथ एवरी प्रोबेबिलिटी. ओके, हेंस एन ओमनी डायरेक्शनल यूनिट be used. Moreover, measurements हमें रिवील करते हैं कि that elevation angle from scattered signals received in urban areas is greater than in suburban areas. Hence, an omnidirectional antenna must be used. हमें omnidirectional antenna यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि measurements reveal that elevation angle for scattered signals received in urban areas is greater than in suburban areas. For elevation angle in scattered signals received in suburban areas is greater than in suburban areas. मोबाइल हाइगन एंटीना डायरेक्शनल एंटीना से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डायरेक्शनल एंटीना जो भी होता है वो हॉरिजॉन्टल वाले को सपोर्ट करते हैं. ये हाइगन एंटीना होते हैं ना, उसका पैटर्न वर्टिकली सप्रेस्ड होता है. इन्हें मोबाइल रेडियो एनवायरनमेंट, जब भी कोई गाड़ी पे एक एंटीना लगवाया तो स्कैटरिंग सिग्नल्स अराइव एट द मोबाइल यूनिट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन विथ एवरी प्रोबेबिलिटी. वो गाड़ी होते हैं ना, उस गाड़ी को सिग्नल्स एवरी डायरेक्शन पे आएगा, एवरी प्रोबेबिलिटी पे आएगा, एवरी डायरेक्शन पे आएगा, एवरी प्रोबेबिलिटी आएगा. इसीलिए एन ओमनी डायरेक्शनल मस्ट बी यूज्ड. एक ओमनी डायरेक्शनल हमें बिल्कुल भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट्स हमें रिवील करता है कि एलिवेशन एंगल फॉर स्कैटरिंग सिग्नल्स, एलिवेशन एंगल फॉर दीज स्कैटरिंग, ये सिग्नल्स स्कैटरिंग सिग्नल्स होते हैं ना, उस स्कैटरिंग सिग्नल्स के एलिवेशन एंगल सब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है. सब अर्बन एरियाज से कंपेयर करके अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं. First point, Huygens antenna, mobile Huygens antenna used on a mobile unit should be distinguished from a directional antenna. In directional antenna, the pattern is suppressed horizontally, and in Huygens antenna, the pattern is suppressed vertically. Okay, in a mobile radio environment, the scattered signals arrive at mobile unit from every direction with every probability. एक मोबाइल रेडियो एनवायरनमेंट होते हैं ना, उस एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड सिग्नल्स कई डायरेक्शन पर भी आते हैं, कई एवरी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, मगर इसीलिए हम इसे ओमनी डायरेक्शनल भी कहते हैं. ये ओमनी डायरेक्शनल हमें यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि हमें मेजरमेंट्स रिवील करता है कि एलिवेशन एंगल फॉर स्कैटरिंग सिग्नल्स रिसीव्ड इन सबअर्बन एरियाज इज ग्रेटर दैन इन सबअर्बन एरियाज. ओके, ठीक है ना. Horizontally oriented space diversity antennas. Horizontally oriented space diversity antennas. The two-branch space diversity receiver mounted on a motor vehicle has the advantage of reducing fading and thus can operate at a low reception level. यह क्या है? The two-branch space diversity receiver mounted on a motor vehicle. Two-branch space density receiver mounted on a motor vehicle has the advantage of reducing fading and thus can operate at low reception level. ये होते हैं ना, ये लो रिसेप्शन लेवल से भी ऑपरेट कर सकते हैं. हम इसको लो रिसेप्शन लेवल से भी ऑपरेट कर सकते हैं. मोटर व्हीकल में जो भी लगा हुआ एंटीना हैज़ द एडवांटेज ऑफ फेडिंग, అంటే सिग्नल लॉस्ट होने के बावजूद ये काम करते हैं और लोअर रिसेप्शन लेवल पे भी काम कर सकते हैं. The discussion here concerns a space diversity scheme in which a two vehicle mounted antenna separated horizontally by 0.5 wavelength can achieve this diversity. The two-branch space diversity receiver horizontally oriented space diversity antenna. The two-branch space diversity receiver mounted on a motor vehicle has the advantage of
reducing fading and thus can operate a lower reception level. The discussion here concerns a space diversity scheme in which two vehicles mounted antenna separated horizontally by 0.5 wavelength can achieve this diversity. इस diversity को ये achieve कर सकते हैं. The two branch space diversity receiver mounted on a motor vehicle has the advantage of reducing fading and thus can operate at lower reception level. Lower reception level पे ये operate कर सकते हैं. The discussion here concerns a space diversity scheme. यहाँ कोई डिस्कशन होते हैं ना, ये हमें यही कंसर्न करता है कि ये स्पेस डाइवर्सिटी स्कीम को करते हैं. हॉरिजॉन्टल बाय 0.5 वेवलेंथ कैन बी अचीव दिस डाइवर्सिटी. इस हॉरिजॉन्टल स्पेस एंटीना से हम 0.5 वेवलेंथ को अचीव कर सकते हैं. 0.5 वेवलेंथ को अचीव कर सकते हैं इस एंटीना से जुड़ के. Demonstrate about space diversity antennas. Space diversity antennas. I think I have read this. Glass mounted antenna, roof mounted antenna. Okay, cool. Glass mounted antenna, roof mounted antenna. Okay, cool. मैंने इसे नहीं पढ़ा है. डेमोन्स्ट्रेट अबाउट स्पेस डाइवर्सिटी एंटेना. स्पेस डाइवर्सिटी एंटेनास क्या होते हैं? टू ब्रांच स्पेस डाइवर्सिटी एंटेनास आर यूज्ड एट सेल साइट टू रिसीव द सेम सिग्नल विद डिफरेंट फेडिंग एनवेलप्स एट 1 at each antenna. Two branch space diversity antennas are used at cell site to receive the same signal with different fading envelopes at 1 at each antenna. Different fading envelopes 1 at each antenna. The degree of correlation between two fading envelopes is determined by degree of separation between two receiving antennas. Degree of correlation between two fading envelopes. जो टू फेडिंग एनवेलप्स होते हैं ना, डिग्री ऑफ कोरिलेशन होते हैं ना, वो इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू रिसीविंग एंटेनास. वो डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट रिसीविंग एंटेनास पे डिपेंड करते हैं. व्हेन द टू फेडिंग एनवेलप्स आर कंबाइंड द डिग्री ऑफ फेडिंग इज रिड्यूस्ड. व्हेन द डिग्री ऑफ फेडिंग इज रिड्यूस्ड. Two branch space diversity antennas are used at the cell site to receive the same signal with different fading envelopes. Demonstrate about space diversity antenna. Space diversity antenna क्या होते हैं? टू ब्रांच स्पेस डाइवर्सिटी एंटेना होते हैं ना, वो सेल साइट में यूज़ करते हैं. वो दोनों होते हैं ना, एक सिग्नल को, सेम सिग्नल को डिफरेंट फेडिंग एनवेलप्स में कैच करते हैं. एक स्पेस डाइवर्सिटी एंटेना एक ही सिग्नल को दो फेडिंग एनवेलप्स के दौरान पे कैच करते हैं. डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू फेडिंग एनवेलप्स इज determined by the degree of separation between the two receiving antennas. The degree of correlation between two fading envelopes is determined by the degree of separation between two receiving antennas. When the two fading envelopes are combined, ये two fading envelopes होते हैं ना, वो combine करके the degree of fading is reduced. When the two fading envelopes are combined, ये दो fading envelopes को combine करने के बाद the degree of fading reduce हो सकते हैं. ये स्पेस डाइवर्सिटी एंटेनास होते हैं ना, इसको टू ब्रांच स्पेस डाइवर्सिटी एंटेना होते हैं. ये टू ब्रांच स्पेस डाइवर्सिटी एंटेनास आर यूज्ड एट सेल साइट टू रिसीव द सेम सिग्नल विद डिफरेंट फेडिंग एनवेलप्स. एक ही सिग्नल को डिफरेंट फेडिंग एनवेलप्स के दौरान पे कैच करके एक एंटेना पे कैच करते हैं. द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू फेडिंग एनवेलप्स इज डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिसीविंग एंटेनास. ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन होते हैं ना, ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन दो एंटीना के सेपरेशन एंगल होते हैं ना, उस एंगल के
द्वारा हमें पता चलता है। द टू फेडिंग एनवेलप्स आर कंबाइंड, ये टू फेडिंग एनवेलप्स कंबाइन होके द डिग्री ऑफ फेडिंग रिड्यूस हो सकता है। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपिगेशन। लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपिगेशन क्या होता है? द एडवांटेजेस ऑफ ए हाई सेल साइज इज दैट इट कवर्स द सिग्नल in a large area, covers the signal in a large area, especially in a noise limited system where usually different frequencies are repeated using in different areas. However, we have to be aware of the long distance propagation phenomena. A noise limited system gradually becomes an interference limited system as the traffic increases. The interface is due to not only the existence of many co-channels and adjacent channels in the system, but the long distance propagation also affects the interference. Interference होते हैं ना is due to not only the existence of many co-channel and adjacent channels in the system. Co-channel और adjacent channel के system में भी नहीं हुआ था, but the long distance propagation also affects the interference. ये interface को भी affect करती हैं. Within a radius of 50 mile radius, for a high side, the lowered atmosphere phenomena which causes the ground wave path to propagate in a straight line. In a straight line fashion, the wave path can bend either upward or downward. Then we may have the experience that at one spot the signal may be strong at one time but weak at another. At a distance of 320 km, okay. Tropospheric reflection moistness, ये क्या है? 50 माइल रेडियस में क्या होता है ये बताता है. 200 माइल रेडियस में क्या होता है ये बताता है. 200 माइल रेडियस में ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं, ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्शन होते हैं और मॉइस्चनेस के दौरान में भी ये काम करते हैं. ये सभी क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें सुनो. एक्सप्लेन अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपगेशन. लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्रोपगेशन क्या होता है? अगर आप इंडिया में हैं और आपके दोस्त यूएसए में हैं, आप उसे डायरेक्ट फ़ोन टू फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपगेशन आपको हेल्पफुल करते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ हाई सेल साइट इज़ दैट इट कवर्स दिस सिग्नल इन ए लार्ज एरिया. हाई सेल साइट एक लार्ज एरिया को रिसीव करते हैं, स्पेशली इन ए नॉइस लिमिटेड सिस्टम. ये नॉइस लिमिटेड सिस्टम होते हैं ना, उसमें वेयर यूजुअली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर रिपीटेडली यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज. डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट एरियाज में यूज़ करते हैं. However, we have to be aware of the long distance propagation phenomena. हमें लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपगेशन फिनोमेना में अवेयर होना चाहिए. ए नॉइस लिमिटेड सिस्टम ग्रेजुअली बिकम्स एन इंटरफेरेंस लिमिटेड सिस्टम एज द ट्रैफिक इंक्रीजेस. ट्रैफिक जब भी ट्रैफिक इंक्रीज करता है वो नॉइस लिमिटेड सिस्टम ग्रेजुअली इंटरफेरेंस लिमिटेड सिस्टम बन सकता है. इंटरफेरेंस लिमिटेड सिस्टम माने अब कोई कॉल को कर रहे हैं मगर चैनल बिज़ी है, सभी लोग कॉल में बात कर रहे हैं, तभी आपको इंटरफेरेंस लिमिटेड हो सकते हैं. आपका नॉइस लिमिटेड सिस्टम, नॉइस को रिड्यूस करने वाला सिस्टम इंटरफेस लिमिटेड सिस्टम बन जाता है. इंटरफेस लिमिटेड सिस्टम माने आपका कॉल ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई लोग आपके पास बात कर रहे हैं ना दूसरे लोगों से, तो इसीलिए आप दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते. आपके फ़ोन से आप बात नहीं कर सकते. ठीक है. द इंटरफेरेंस इज ड्यू टू नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी को चैनल्स एंड एडजेसेंट चैनल्स इन दिस सिस्टम,
but the long distance propagation also affects the interference. विद इन एरिया 50 माइल रेडियस, 50 माइल रेडियस में अगर आपकी दोस्त है, आप ए में हैं और आपके दोस्त बी में हैं, आपके दोस्त बी में है, उसका रेडियस 50 माइल के दौरान पे वो है, आप उसे बात करना चाहते हैं, वो क्या हो सकते हैं? फॉर ए हाई साइड द लो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना वुड कॉज द ग्राउंड वेव पाथ टू प्रोपगेट इन ए स्ट्राइट लाइन नॉन स्ट्रेट लाइन फैशन। एक ग्राउंड वेव पाथ होते हैं ना, नॉन स्ट्रेट लाइन फैशन में वो ट्रैवल करते हैं। द वेव पाथ कैन बी बेंड इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो अपवर्ड बेंड कर सकते हैं या डाउनवर्ड बेंड कर सकते हैं। देन वी मे हैव द एक्सपीरियंस दैट वन स्पॉट द सिग्नल मे बी स्ट्रॉन्ग एट वन टाइम बट वीक एट अनदर। हमें ये मालूम होता है कि इस में स्ट्रॉन्ग होते हैं और दूसरे जगह पे वो वीक होते हैं, यही है। फॉर ए हाई सेट द लो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना वुड कॉज द ग्राउंड वेव पाथ टू प्रोपगेट इन ए नॉन स्ट्रेट लाइन फैशन। ये हाई सेट होते हैं ना, ये हाई सेट लो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं ना, ये नॉन स्ट्रेट लाइन फैशन में ट्रैवल करते हैं। द वेव पाथ कैन बी बेंड, इधर फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं या बैकवर्ड डाउनवर्ड बेंड कर सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड बेंड कर सकते हैं। देन वी हैव द एक्सपीरियंस दैट एट वन स्पॉट द सिग्नल मे बी स्ट्रॉन्ग एट वन टाइम बट वीक एट अनदर टाइम। एक स्पॉट में ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और दूसरे स्पॉट में ये वीक हो सकते हैं। इस 50 माइल रेडियस में 200 माइल रेडियस में क्या हो सकते हैं? 200 माइल रेडियस माने बहुत ज़्यादा है ना, उसमें क्या हो सकते हैं? Tropospheric wave propagation prevails at 800 MHz for long distance propagation. Sometimes the signal can reach 320 kilometers away. Okay, tropospheric wave propagation prevails at 800 MHz for long distance propagation. The wave is received 320 kilometers away because of a abrupt change in the effective dielectric constants of the troposphere. Troposphere के dielectric constant को चेंज होने के बाद ये होता है, द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के दौरान पे ये चेंज हो सकते हैं, विच डिक्रीजेस विथ हाइट एट रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एंड रीचेस -50 डिग्री सेंटीग्रेड एट अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर। इन डायइलेक्ट्रिक प्रोपगेशन द वेव may be divided by refraction and reflection. ट्रोपोस्फियर में वेव रिफ्रैक्शन के दौरान पे कर सकते हैं या रिफ्लेक्शन के दौरान पे कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस रिफ्रैक्शन इज ग्रेजुअल, दिस रिफ्रैक्शन इज ए ग्रेजुअल बेंडिंग ऑफ द रेस ड्यू टू द चेंजिंग effect of dielectric constant of the atmosphere through which the wave is passing. Tropospheric reflection, this reflection will occur where there are abrupt changes in the dielectric constant of the atmosphere. ये reflection होते हैं ना, ये reflection will occur when there is an abrupt change in the dielectric constant of the atmosphere. Okay, the distance of propagation is much greater than the line of sight of propagation. The distance of propagation होते हैं ना, the distance of propagation is much greater than the line of sight propagation. Moistness, water content has much more effect than atmosphere on the dielectric constant of the atmosphere. Water content होते हैं ना, water content has more effect than temperature on the dielectric constant of the atmosphere and on the manner in which the radio waves are affected. The water vapor pressure decreases as the height increases. Water vapor pressure होते हैं ना, वो pressure decrease हो सकते हैं height increase होने के बाद. Tropospheric wave propagation does cause interference and can only be reduced by umbrella antenna beam patterns. A directional antenna pattern or low power low antenna approach.
Justify the effect of propagation of mobile signals over water and flat open area. Propagation over water or flat open area. Propagation over water or flat open area is becoming a big concern because it is very easy to interface with other cells if we do not make the correct arrangements. Interference resulting from propagation over the water can be controlled if we know the cause. The permittivities of seawater and fresh water are the same, but the conductivities of seawater and fresh water are different. Permittivities of seawater and fresh water are the same, but the conductivities of seawater and fresh water are different. Then permittivity of seawater is equal to 80 minus J 84, and permittivity of fresh water is equal to 80 minus J into 0.021. Okay. Based upon the refraction coefficients formula with a small instant angle, both the reflection coefficients for horizontal polarization waves and vertically polarized waves approaches 1. Because 180 degrees phase change occurs at the ground reflection point, the reflection coefficient is minus 1. Reflection coefficient is minus 1 at ground reflection point. For horizontal polarization waves, vertical polarization approach 1. Below shown are two antennas, one at the cell site and the other at the mobile. One at the cell site and one at the mobile unit are well above sea level. Two reflector points are generated. Ninth question. Explain different types of antenna used for coverage and interference reduction. Explain different type of antenna used for coverage and interference reduction. Coverage use omnidirectional antennas, 6 dB and 9 dB gain omnidirectional antennas whose directional pattern is shown in the figure. This is very easy man. ये हम इजी से ड्रॉ कर सकते हैं. इसे छोड़ो, ये क्वेश्चन को छोड़ो, हमें इसे बहुत इजी से ड्रॉ कर सकते हैं. ये सेल सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये आसान है. जस्टिफाई द मेरिट्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट मॉडल. मेरिट्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट मॉडल का मेरिट्स क्या हो सकते हैं? ठीक है. नाइस. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन में चलो. क्या दिया है नाइन्थ क्वेश्चन में? हमें स्किप किया था ना. एक क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटेना यूज्ड फॉर कवरेज एंड इंटरफेरेंस रिडक्शन. ठीक है. या वी हैव कंप्लीटेड 8 क्वेश्चंस एंड दिस इज द 9th क्वेश्चन एक्चुअली. Explain about different types of antenna used for coverage and interference reduction. Coverage use omnidirectional antenna, 6 dB and 9 dB gain omnidirectional antenna whose directional pattern is shown in the figure. 6 dB and 9 dB omnidirectional antenna is being used in it is shown in the figure and it is vertical 6.5 dB. Okay. High gain omnidirectional antennas gain with reference at dipole A 6 dB and B 9 dB. This first diagram has 6 dB gain and this second diagram has 9 dB gain. High wave dipole. Okay. Startup system configuration. In a startup system, an omnidirectional in which all the transmitting antennas are omnidirectional used. In a startup system, an omnidirectional cell in which all the transmitting antennas are omnidirectional are used. Each transmitting antenna must transmit signals from 16 radio transmitters simultaneously using 16
16 channels combined. Each channel has 3 transmitting antennas which serve 45 voice channel transmitters. Each sending signal is amplified by its own channel amplifier in each radio transmitter. Then 16 radio channels are combined and transmit the signal by transmitting antenna. Two receiving antennas, all 45 voice radio channels simultaneously. The two simultaneously the two identical signals received by the two received or passed through the density. Okay, cool, relax. Cell set antenna for omni cells. Yeah, for 45 channels, for 90 channels. Abnormal antenna configuration. To meet the increased demand, a cell set can be equipped with up to 90 radio voice channels and the transmitting antennas to 6 numbers should be used and shown in the figure. Okay, directional antennas. Okay, cool, directional antenna. Okay, case 1. For 7 cells, it requires 120 degrees sectoral directional antenna. For 7 cells, it requires 120 degrees directional antenna. In 333 channels, each cell has 45 voice channels. Each 120 degrees sector has a 1 transmitting antenna and 2 receiving antennas are required to receive 16 radio channels. Case 2. Transmitting and receiving 60 degrees sectors. For 4 cells, it requires 68 transmission. For 4 cells, it requires it requires 68 sectoral antennas is sufficient for interfacing reduction. For all 333 channel coverage sector, each sector each 60 degree sector carry 13 radio channels by 1 transmitting antenna use and 1 receiving antenna. At the receiving end, 2 of 6 receiving antennas are selected for angle diversion for each radio channels. This question is somewhat difficult. Just read it out. This 9th question is there, no? This 9th question A is somewhat difficult. It's not very difficult, it is somewhat difficult. You can manage it by reading it. Okay, cool. Justify the merits of point-to-point model. It is very important. Point-to-point model. The point-to-point model is very useful for designing a mobile cellular system with a radius for each cell of 10 miles or less. This point-to-point prediction can be used to provide overall coverage of all cell sites and to avoid co-channel interference. The occurrence of handoff in the cellular system can be predicted more accurately by using this point-to-point model. This point-to-point model is very useful for designing a mobile cellular system with radius for each cell of 10 miles or less. This point-to-point prediction can be used to provide overall coverage of all sites and to avoid co-channel interference. The occurrence of a handoff in the cellular system can be predicted more accurately. The point-to-point prediction model is a basic tool that is used to generate a signal coverage map, an interference area map, a handoff occurrence map. Okay. Outline the GSM architecture with a neat structure. GSM architecture. General architecture of a group of special mobile GSM network. GSM architecture, radio subsystem, network and switching
Subsystem, operating subsystem. Radio system is also subdivided into mobile station and radio station substation. Okay. GSM architecture. Subscriber identity mode, module phone, base transceiver station, base transceiver station. Okay. GSM architecture, it is a diagram actually. Mobile station, base station substation, base station subsystem, नेटवर्क सबसिस्टम. मोबाइल स्टेशन में क्या होता है? मोबाइल स्टेशन में सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होते हैं ना, उसके पास सब्सक्राइबर सिम होते हैं ना, वो सिम मोबाइल फ़ोन में होते हैं, वो एक एयर इंटरफेस से कनेक्ट होते हैं. ये एयर इंटरफेस में बेस स्टेशन सबसिस्टम, बेस से सबस्टेशन में क्या होता है? बेस ट्रांसीवर स्टेशन होते हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन होते हैं, दो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होते हैं और बेस स्टेशन कंट्रोलर. बेस ट्रांसीवर ट्रांसमीटर, बेस ट्रांसीवर स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर होते हैं. होम लोकेशन रजिस्टर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर होते हैं. होम लोकेशन रजिस्टर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर होते हैं. और मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर PSTN होते हैं. और इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ऑथेंटिक सेंटर नेटवर्क सिस्टम. GSM सिस्टम आर्किटेक्चर, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सबस्टेशन, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम. मोबाइल स्टेशन, मोबाइल इक्विपमेंट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बेस स्टेशन सबस्टेशन. ओके. इसमें क्या भी सब पार्ट होते हैं ना, वो सब पार्ट सभी को इसमें डाल दिया. नेटवर्क स्विचिंग स्टेशन में क्या होते हैं, ये सबको इसमें डाल दिया. ओके, ठीक है. बेस सबस्टेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं ना, बेस सबस्टेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इस तरह का होता है. ठीक है. ये डायग्राम्स होते हैं ना, ये डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा. कंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ OFDM, orthogonal frequency division multiple access, orthogonal frequency division multiple access, where the spread spectrum techniques spreads the data over several carriers. They are spaced apart at precise frequencies. Orthogonal frequency division multiplexing is an important technology for all next generation wireless systems, as it offers numerous advantages over other existing technologies, such as robust performance over multipath fading channels and the ability to achieve high spectral efficiency. OFDM is a form of multi-carrier modulation where high rate data stream is split into several lower rate streams. They are transmitted simultaneously over several up carriers. ठीक है. एक प्रिंसिपल होते हैं, उसका डायग्राम होते हैं. आउटलाइन अबाउट मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स. सेविंग bandwidth is important criteria. 3 multiple access schemes: TDMA, FDMA, CDMA. Each technique. TDMA, time division multiple access. Features: hand process is very simple. TDMA shares a single carrier frequency, possible to allocate different users of time slots per frame to different users. More efficient. Deminite, high synchronization is required because of burst transmission. High synchronization is required here. Frequency division multiple access, FDMA.
More simple necessity of duplexer transmitter and receiver operate at same time. High cost, high adjacent channel interference, narrow bandwidth. CDMA, code division multiple access, more noise free, soft scheme, reduction of multipath fading, eliminates interface due to process of decorrelation, simple channel management, demerits, occurrence of near far problem and self jamming problem, high channel data rates. ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे इस पेपर से ये साबित होता है कि अगर कल एग्ज़ाम है और कल एग्ज़ाम में मुझे यही पेपर मुझे कल एग्ज़ाम में आया, मुझे बस 3 घंटे चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, मुझे बस 3 घंटे चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। 3 घंटे इसके लिए काफ़ी हैं, 3 घंटे इसके लिए बहुत काफ़ी हैं। 3 घंटे से ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर मैं पेपर दिया तो मैं लिख सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ। एक बात मैं बोल रहा था, मैं पास हो सकता हूँ, ये पेपर दिया तो। इसे मैं कंक्लूड करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ उस वीडियोस को भी आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस।